आप देख रहे हैं अपना समाचार। Thank Parvez sir for all his efforts. He's been there with me throughout my entire taekwondo journey. Without him, I wouldn't have become a black belt. So a big round of applause. I thank Parvez sir for everything. He teaches me so well. That's why I can fight very well. I became a very good taekwondo national and international player. I couldn't become a black belt without him. Thank you, sir. You all, dear respected parents and the honorable chief guest and Parvez sir. It gives me great pleasure to be here and be honored with the small prize or recognition that I've received along with my
fellow students. And this is my 4th year of the journey in Taekwondo. And this all started one fine evening when I chanced upon the training academy in 7 Bungalows area in Andheri West. And in fact, I was looking for some avenue for some physical activity for my children who are seated at the back of the audience. There are 3 of them. And along with them, I just enrolled because I saw that the energy that is created in the classes and the dedication with which the instructors are guiding the kids and instilling a lot of, it's not just physical activity but a lot of moral values and very important lessons in sportsmanship, in patience, and that is where I stand before you as a proud recipient. I have reached a Red 1 level today, a few weeks ago, and preparing for my upcoming examination for the first level of black belt. So with help of my students who are equally regular, I would say, and with help of my instructors, I hope that I proceed in this journey. I promise that it won't stop at black belt. I'll keep trying. Just for information of some of you, I am 46 years old, and in the beginning of the class, it was also session. It was mentioned that this art, sports, is not for a specific age group or gender or for some specific background. Anybody who's keen to maintain fitness and maintain a level of enthusiasm in their lives can pick up this sport. It's not just martial arts. It's not for inflicting damage, but it's for the purpose of self-defense as well as bringing a lot of rigor and discipline in one's life. So thank you so much everybody for coming here for this function, and I wish you all a great evening ahead. Thank you. To thank Parvesh sir and other teachers who trained me to get till red belt. Without their help I couldn't do this much. They helped me to break tiles and much more. Evening everyone, and so Taekwondo has been a really huge part of my journey. It has helped me shape up myself, become confident in life and have a positive outlook, and it's all thanks to our Grandmaster Parvez Khan and other masters as well, Rajkumar sir and Lalit sir, who have been a huge part of this journey, and all my batchmates as well from Juhu branch and St. Bungalows branch. Thank you so much. To everyone, I am Dash Shah. I've been in Taekwondo since 12 years now, and 7 years with Parvesh sir. He has really taken me to a whole new level of potential. I've been with him in competitions and on state level, national level, international level. I learned a lot with Parvesh sir and Rajkumar sir and Lalit sir here. They have trained me a lot. They have really improved my what can I say, everything, like every aspect of physical aspect of my body, and I'm really thankful to them, and I'm really thankful to my friends over here who are present here. And I'm going to be a 4-time black belt, and so I'm really thankful to Parvesh sir here. ये मुझे था, लेकिन परवेश सर ने आई एम 49 ईयर्स ओल्ड, जब भी मैंने स्टार्ट किया था तभी मुझे सब बोल रहे थे कि ये एज में मैंने तो 30 इयर्स पहले टाइकोंडो किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं परवेश सर के पास आई, उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला कि क्यों नहीं कर सकते तुम, एज कोई ये नहीं है कि ये एज में करो वो एज में, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया और मैं बेस्ट इंस्ट्रक्टर तैयार हो गई। आई थिंक गुड इवनिंग सबको। मुझे बोलने नहीं आता, बड़ा डर लगता है, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, यहाँ सारे दिग्गज लोग बैठे हैं, तो बोलने में बहुत डर लगता है। करना अलग बात है, मार्शल आर्ट तो उसकी एनर्जी ही अलग है। ये सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जितने भी होते हैं जहाँ भी, क्योंकि वो अब माइंड मेकअप करके ही आते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट मैं पिछले 6 साल से देख रहा हूँ, दे आर वेरी डिवोटेड, और मैं ये कहूँ कि हमेशा लगे रहना, क्योंकि मार्शल आर्ट ऐसा है, कोई भी एक आर्ट
आपको इंटरनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो बहुत सारे लोग देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, बस इतना ही कहूँगा, जहाँ भी रहना, जो भी कर रहे हो, कोई भी एक आर्ट मार्शल आर्ट दबा कर। और सर का थैंक यू, क्योंकि मैं बहुत सालों से, आई थिंक 2014 से जुड़ा हूँ, 2014 से, हाँ शायद तब से मुझे तो अब नहीं लगता है कि हाँ कुछ छूटा है। बस एक चाहिए, एक दिन, ये मार्शल आर्ट एक दिन चाहिए ही चाहिए, 7 दिन में एक दिन मिसिंग, समथिंग मिसिंग, बिग मिसिंग, ऐसा लगता है मुझे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गिविंग दिस। थैंक यू सो मच सर। मैं जब से कोरिया कॉम्बैट से जुड़ा हूँ, परवेश सर का आशीर्वाद है मुझे। सो मैं इस एकेडमी में इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सीख रहे हैं क्लास में, मैं चाहता हूँ कि परवेश सर सबको मौका देते हैं, सब जितने भी स्टूडेंट हैं सबको आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं। एंड बेटर बहुत बढ़िया है सर की जो जर्नी है, बहुत अच्छी है। क्लास हम चाहते हैं अच्छा करने के लिए, सर ने हमें वो मौका दिया। सो थैंक यू सब लोग का, यहाँ पे जितने जने हैं, थैंक यू सो मच। Everybody, I'm Rama Sanyas, and I'm very thankful to Rajneesh ji and Parvesh ji to invite me here. Actually, I believe anything learning is an asset for us in our life. Anytime we can use. And nowadays the environment is so very different in the world, everywhere. I don't say India, everywhere. We are all in a bit of confusion. So we must learn some art like Taekwondo. I've been looking for somebody who can teach me. So I think I'm going to be your student. And I must say thanks to everybody for inviting me. And nice meeting all of you. मैं अभी टाइकोंडो 2011 से कर रहा हूँ। बहुत टाइम लगा, लेकिन मैं कंसिस्टेंट था और मैं एवरी वीकेंड आता हूँ, सैटरडे संडे। कभी मैं अंधेरी ब्रांच में जाता हूँ, कभी मैं DN नगर के ब्रांच में जाता हूँ। बट आई हैव ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट एंड it's a process. Time, patience is the virtue, and उसके बगैर ब्लैक बेल्ट में नहीं पहुंच सकता था। मैंने ताइक्वांडो 2006 में स्टार्ट किया था। मैं पोम 2 ब्लैक बेल्ट हूँ। कितने ब्लैक बेल्ट लेने चाहते हो? मैं पूरा 9 तक लेना चाहता हूँ। और इंस्टीट्यूट जो सिखा रहे हैं, जो मास्टर्स हैं, किस तरह का रवैया, किस तरह का व्यवहार आपके साथ होता है? बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छे से सिखाता है। मैं जानता हूँ कि उन लोग और भी अच्छा रहो, तब मैं 9th तक मैं पहुँच सकता हूँ। मैं 3rd डैन ब्लैक बेल्ट हूँ। अभी मैं लगभग 2013 से कर रही हूँ टाइक्वांडो। मुझे ब्लैक बेल्ट लेने में अबाउट 9 साल लग गए और हमारे इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं। तो बेसिकली दे मेक श्योर दैट आई डोंट फॉल्टर एनीवेयर। दे मेक श्योर दैट आई गेट द बेस्ट ऑफ एवरी किक आई मेक। एजुकेशन कैसा चल रहा है? कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है? ये भी सीखते हैं, वो भी करते हैं कुछ? नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि टाइक्वांडो के क्लासेस यूजुअली वीकेंड्स पे होते हैं और हमें बेसिक सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस से हमें बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। तो हमारी कुछ प्रैक्टिस में इंटरफेरेंस भी नहीं आती। हाय, हेलो, आई एम इकबाल शेख, Assistant Commissioner of Police, retired from Mumbai Police about 10 years back in 2012. But I keep myself fit. I go to Joggers Park practically every day. And regarding Taekwondo, as I said, I had heard it about Taekwondo 3 decades back, way back in 1992, when we were encountering one big diamond robber. He was a Taekwondo expert. Since then I have been learning, but in the last 30-40 years, Taekwondo did not get the recognition it deserved. So we need to make it more popularized by spreading this martial art to other sports like clubs, gymkhanas, YMCAs. So there will be large number of players, and the way every game is being promoted,
Initially, only cricket was being promoted with the IPL and all that. Then it came to the Football League, SPL Premier League. Then it came to Kabaddi Premier League. Now there is a Kho-Kho Premier League. So like that, there has to be a Taekwondo Premier League. We need to conduct it, and we have so many celebrities, including Mr. Parvez Khan, like Mr. Vidyut, the film actor, Akshay Kumar, and Tiger Shroff, and other people who have been practicing Taekwondo. They are sort of experts in that. They should come forward and promote this game, promote this sport, because this game is not only a sports, but it can also provide you bread and butter, and it gives you not only self-protection, self-defense, you can defend the others also. So we need to promote such games. Thank you very much. सर आपसे जानना चाहेंगे कि सर भी आए हैं और आपके बहुत सारे लोग ने आज ब्लैक बेल्ट, कितने स्टूडेंट्स ने आज ब्लैक बेल्ट लिया और कितने स्टूडेंट ने डबल ब्लैक बेल्ट लिया? ब्लैक बेल्ट अराउंड मुझे लगता है, अब भूल गया हूँ मैं, 300 से ज़्यादा ब्लैक बेल्ट थे मेरे अंडर में। क्या बात है। और कम से कम मैंने 11 इंटरनेशनल खेले, और मेरे प्लेयर्स ने कम से कम नहीं तो 27 इंटरनेशनल खेले। अभी हम सिंगापुर जाने वाले हैं, मॉरिशस के लिए आया इन्विटेशन, बैंकॉक के लिए आया इन्विटेशन। हम देखते हैं, प्लान करते हैं कौन स्टूडेंट्स कैसा है, क्या करेंगे, ट्रेनिंग उस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि आई नीड मेडल्स ऑल्सो, सिर्फ जाना नहीं है कि वापस आना है। तो ऐसा करेंगे, हम लेवल पे ट्रेनिंग भी कराएंगे उन लोगों को। और नेक्स्ट मंथ हम एक अपनी कोरियन कॉम्बैट की टूर्नामेंट करा रहे हैं, उसमें जो बच्चा मेडल जीतेगा उस पर फिर फोकस होंगे कि उसको आगे हम स्टेट और नेशनल में और इंटरनेशनल में लेके जाएँ। सर अभी हमने सुना कि लाल सिंह चड्ढा के बारे में बात हो रही थी, लेकिन आपकी जर्नी जो मैंने सुनी, मैं चाहता हूँ दर्शकों को तो बताएं कि आपकी वो जर्नी जो बचपन की जर्नी जब आप चल नहीं सकते थे, और आपकी जर्नी थोड़ा सा उस बारे में दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए। बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी मेरी, क्योंकि यू नो दैट आई वॉज अ पोलियो पेशेंट। पैर ठीक हुआ, ठीक होने के बाद भी मुझे लगता था कि शायद मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। करते करते बैलेंस किया। आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम ईरान। मेरे फादर हार्ट सर्जन थे, अब डेथ हो गई उनकी, तो वो ईरान गए थे डेपुटेशन पे, हम भी वहाँ गए एंड स्टार्टेड टाइक्वांडो। वहाँ पर लोग जानते नहीं थे टाइक्वांडो क्या है, मतलब आज उस टाइम की बात थी, लोग सोचते थे कोरियन कराटे इज़ टाइक्वांडो, कोरियन कराटे इज़ टाइक्वांडो। बाद में फिर, क्योंकि बहुत नया आर्ट है, 70s में स्टार्ट हुई है और अभी इतनी पॉपुलर हो गई कि वर्ल्ड ओलंपिक की गेम है ये टाइक्वांडो। और अब तो मेरे बहुत सारे ब्रांच स्टार्ट हुए। मैं तो सोचता नहीं था, अकेला चला था मैं, इस उम्मीद के साथ, ईमानदारी के साथ लोग जुड़ते गए, लोग मुझे पहचानते गए कि हाँ यार, ये आदमी में सच्चाई है, कुछ करना चाहता है लाइफ में। अब मेरे साथ ख़राब भी लोग भी आए, अच्छे लोग भी आए, जो मतलब दुनिया में होता है स्पोर्ट्स में, कभी हारा भी, कभी जीता भी, कभी रोया भी, कभी खुश भी हुआ। तो हर सबके साथ होता है सर, आपके साथ भी होगा अपने कैरियर में। अप डाउन्स बहुत होंगे ना, कभी बहुत प्रेशर है, कभी नहीं है, कभी इंजॉय कर रहे हैं आप इवेंट को, कभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका सफ़र जारी है। अगर आप सही हैं तो दुनिया सही है, अगर आप गलत हैं तो सब गलत है। यही सफ़र आज तक जारी है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ वही जारी रहेगा, सच्चाई के साथ। सर आने वाला आपके क्या क्या प्लान है, आपके स्टूडेंट्स को लेके क्या क्या प्लान अपने? मेरे बहुत अच्छे प्लान्स बनाए हुए हैं मैंने। मैं चाहता हूँ कि कुछ पेरेंट्स मेरे साथ बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब अगर मैं रात को ही फ़ोन करूँ, दिन में भी फ़ोन करूँ, तो वो दे आर रेडी कि कुछ कीजिए, बताइए सर, हम तैयार हैं करने के लिए। तो हम उनको बैठ के प्लान करेंगे कि हम खुद एक इंटरनेशनल इवेंट कराएं इंडिया में। और हमारी फेडरेशन से बात हुई, फेडरेशन आर रेडी कि आप कराओ इंटरनेशनल इवेंट। तो 10 कंट्री जब बॉम्बे में आके खड़ी होगी और इवेंट होगा, सर ने बहुत अच्छा कहा था, वी नीड स्पॉन्सरशिप, क्योंकि अकेला आदमी नहीं हो पाएगा। मतलब एक छोटा भी इवेंट में कराएं तो आप बताइए 30 से 40 हज़ार रुपये ख़त्म हो जाते हैं। तो एक बड़ा इवेंट जहाँ लोग आ रहे हैं, उनका रहना, खाना, आना था, और A1 लेवल पे। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारी कंपनी मुझसे कॉन्टैक्ट में है, जो बेस्ट होगा हम ज़रूर एक इंटरनेशनल इवेंट कराने की सोचेंगे। थैंक यू।